Good morning, everyone. I begin my class with the discussions of few of the questions, not the whole paper. But you had your UT3 in the morning. I'm sure you must have done well, definitely, for sure. And I don't know the reason why many of you are uploading the papers so late. Why the technical glitch is always when uploading on the classroom, but when I can see your WhatsApp, you are always online in most of the cases. The one who sent the message me कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्लासरूम में बट अदरवाइज इंटरनेट इज वर्किंग फाइन तो चेकआउट कि कहाँ इशू है एंड वर्क अकॉर्डिंगली. So in your UT paper you had the question, the first section, one marker each, so there is no need to discuss first question. That's a straightforward problem. When I talk about the second question, so you need to find the derivative of this. So it's basically the dy by dx, and we need to apply the chain rule for the power function nx n minus 1, and then into the derivative of tan x, which is secant square x, your required answer. Same way for the third question, again it is the application of chain rule only. So the derivative of log 1 upon x, the 1 upon sine x square into. Now it's the turn of sine function. The derivative of sine is cos into. Finally, x square, the derivative is 2x. The better way to express the answer is write 2x and then followed by, this is actually cos by sine, which become cot of x square. Your required answer. In case you have any doubt, you can always ask in between. Then this is your two marker question. Again, direct question, I think from your NCERT textbook only or little bit changed, but that you can easily do. Just take the LCM and then rearrange and simplify. Very simple and direct question is this. Then differentiate the following using first principle. So very first thing, remember to call this as fx, because I am going to apply the formula of derivative, which is f dash x, and which is given by limit s to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So this is the first and the most important step of this question. Then f of x plus h means replace x by x plus h. So this angle will become 2x plus 2h. Do not forget, when I am multiplying this by replacing x by x plus h, so 2 into x plus h, so that will be 2x plus 2h minus function fx, which is this only, over h. So the idea of first principle is done. Now I am here how we are going to evaluate this limit. So for that, it is basically cos A minus cos B. So what's the formula for cos A minus cos B? Anyone? What is minus 2 sine a plus b by 2 sine a minus b by 2. minus 2 sine A plus B by 2 into sine A minus B by 2. So of course, the whole question will not depend on this formula. So minus 2 of sine A plus B. So let me write it completely A and then plus B by 2 into sine A minus B by 2. And the whole thing divided by h. It is better I write like this only.
आई होप दिस इज क्लियर। मैंने क्या किया है, जस्ट डिवाइड बाय एच। तो इतना बड़ा बड़ा मैं ये डिवाइड बाय एच इसके नीचे ऐसे लिखता, उससे इजी वे में डायरेक्ट ये आ चुका है। सो दिस इज लिमिट एच टू जीरो माइनस टू बाय एच इंटू, ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ 2x प्लस एच इंटू साइन ऑफ h. 2x cancelled out and this is sin h. So I can, this is very simple, minus 2 bahar, limit h to 0, sin of 2x plus h separate कर दिया, followed by limit h to 0, sin of h by h, because this is a finite limit. So minus 2 into, when h is 0, this is finite value, or this is a direct formula. So minus 2 sine 2x, your required answer. Though of course we have a direct approach, now we know the chain rule. तो cos 2x का आंसर हमें सिंगल लाइन में पता था कि यही आने वाला है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया और 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से इंटू 2 हो गया। तो आंसर तो एक स्टेप में पता था, बट दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन टू यूज दी first principle. So this is the correct and complete solution. Not only the correct answer, the presentation again very important. Differentiate this with respect to x. तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आया तो पहले मैं इसको y कह दूंगा, तभी तो मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा. So there are number of ways possible. One way, you direct apply the quotient rule. What does that mean? dx dy by dx, I apply the quotient rule, नीचे वाले का होल स्क्वायर, और फिर क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, और यहां नीचे वाले को फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड माने ऊपर वाला, ये फर्स्ट ये सेकंड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, माइनस क्या हो जाता है नेक्स्ट चीज, फर्स्ट एज इट इज, ये सेकंड एज इज, सॉरी, सेकंड एज इट इज into derivative of first. Open the bracket and simplify. You'll get your required answer. But if I look at the question carefully, can anyone suggest me some different approach? Rationalize. No, that will make it or complicated. So taking 1 as tan pi by 4. Good. इस टाइम 1 को tan pi by 4 लिख दिया, नीचे इसे 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई एज्यूम किया, सो दैट ये बन जाएगा tan pi by 4 into tan x, so that it will convert into a direct formula tan a minus b. तो बेसिकली अगर y ये है तो व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर हो गया, और अंदर वाले एंगल का डेरिवेटिव -1, योर रिक्वायर्ड आंसर. सो द एक्सपेक्टेशन वाज कि आपने सेकंड अप्रोच को फॉलो किया, सो दैट इजीली आपका 2 स्टेप में आंसर आ गया. बट ऑफ कोर्स इवन इफ यू हैड फॉलोड फर्स्ट अप्रोच और आगे सॉल्व करा, तो हो सकता है आंसर एग्जैक्टली इससे मैच ना करे, बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके इफ योर कंसेप्ट एंड कैलकुलेशंस आर करेक्ट. रिमेंबर, अब ये इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री थ्रू आउट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमने उसे टर्म 2 फर्स्ट में भी लिया था, 2 में भी लेंगे, क्योंकि वहां पर भी हमें जरूरत है. ये सब चीजों के बिना अगर आपको ये याद नहीं है तो वो बात बनेगी नहीं. तो यू नीड टू रिविजिट एंड रिवाइज ट्रिगो एट द सेम टाइम. फिर ये क्वेश्चन आ गया अब आपका,
y गिवन है, प्रूव दिस। वो थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, बट एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि मीनिंग क्या रहा था क्वेश्चन का। तो y ये हो गया, और आपको ये प्रूव करना है। मींस basically I need the value of dy by dx. So how I can do? Direct differentiate. रूट का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, ये तो रूट का हो गया, इनटू, अब चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव कोशिएंट रूल लगेगा, 1 - x/1 + x, तो नीचे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो कोशिएंट रूल अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये नीचे वाला जो रूट है ये ऊपर आ जाएगा, और यहां ये वैल्यू बच गई, इनटू, व्हेन आई ओपन दी ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, चेक करिए ये मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं एक्सप्रेशन जो ये वाला है। इस एक्सप्रेशन को अलग से देखें तो -1 - x, फिर -1 एंड माइनस माइनस प्लस x, -2 बच गया सिर्फ, सो -2, 2 से 2 कैंसल। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसे फाइनली फर्दर सॉल्व करके इस तरह से लिख सकता हूं, ये भी 1 + x है और ये भी 1 + x है, पावर्स कंबाइन, और क्योंकि वो डिवीजन है, रूट का मतलब पावर 1/2 हो गई, और ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया इसका। Once I have the derivative with me, next I will consider LHS. ये LHS कंसिडर किया and start substituting the values. ये dy/dx ये हम निकाल चुके हैं, so -1/√1 - x into 1 - x power 3/2 प्लस y, और y तो मेरे क्वेश्चन में ये रहा, तो वो एक्चुअल में क्या है, √1 - x/1 + x। अब एक क्लियर हिंट है, आंसर 0 है, तो डेफिनेटली ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसल होनी चाहिए। तो एक नेगेटिव की है, एक पॉजिटिव है, तो बस वो एक तरह से लाइक टर्म बनने वाली हैं। तो लेट मी फैक्टराइज दिस, a² - b², विच इज a - b इंटू a + b। ये क्या हो गया, 1 - x की पावर 1/2, 1 - x की पावर 3/2, और इसे अगर मैं रूट में ही या पावर में, वो आपकी चॉइस है। फाइनली बेस सेम वाले कॉन्सेप्ट को आप चेक कर लीजिए, दैट यू कैन इजीली वेरीफाई। वो ये आ जाएगा, they will get cancelled out, and this is equals to 0, hence proved. Please mark your attendance before we move on, everyone. The alternative question जो चॉइस में दिया था वो ये है, y is given sin power 4x plus cos power 4x, and you are to prove the derivative as minus sin 4x. I'm sure most of you must have attempted this particular part,
और मे बी द फर्स्ट वन, वो आपकी चॉइस ही रही थी। स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव। पावर फंक्शन nx n माइनस वन, बट साथ में याद रखना चेन रूल। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, देन प्लस cos पावर 4x का डेरिवेटिव करना है। पावर फंक्शन nx n माइनस वन इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। सो डेरिवेटिव का काम खत्म। अब सिंपल कैलकुलेशन से इसको इसके इक्वल दिखाना है। अगेन ट्रिग्नोमेट्री। सो आई कैन टेक 4 कॉमन, और साथ में साइन एक्स भी आ रहा है, कॉस एक्स भी आ रहा है। तो बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। प्लीज नोट दिस स्टेप केयरफुली। लेट मी टेक नेगेटिव कॉमन फ्रॉम हेयर, और इस 4 को लिख देता हूं 2 इंटू 2। समझ आ जाएगा क्यों ऐसा करा। एक 2 इसे दे दिया, और यहां से माइनस कॉमन निकाल दिया था। नाउ this is the direct formula sin 2x, this is the direct formula cos 2x. So one can easily check out the formula list, और finally 2 sin theta cos theta बन गया sin 2 theta equals RHS, hence proved. Any step which is not clear? यस निकुंज, ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मूलाज हमने यूज किए हैं। Yes, solve the following in equation. 1 upon x plus 1 minus 4 upon 2 plus x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो हमें वैसे भी पता था। नीचे ये दोनों टर्म 0 हो ही नहीं सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली x कैन नॉट बी -1 and x cannot be -2. So let's start. Take the LCM. अपने आप आइडिया लग जाता है कि करना क्या चाहिए। So take the LCM and this would be 2 plus x whole square minus 4 times x plus 1 and greater than 0. Open the square and simplify. Numerator में तो दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में क्या आ रहा है 4x माइनस 4। डू नॉट ओपन द स्क्वायर हेयर इन द डिनोमिनेटर, लेट इट बी एज इट इज। You can easily observe in the numerator we left only with x square, 4 and 4x cancel हो गया, like this. Next, note carefully. Let me combine the square वाली term like this into बच गया ये।
अब ध्यान, इसमें इक्वेशन 1 क्या देता हूं। नाउ एक चीज तो मुझे क्लियरली पता है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एनीथिंग विच इज पॉजिटिव एक्चुअल में उसका इनइक्वालिटी में कोई रोल नहीं होता है, राइट। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, सो फ्रॉम 1 and 2, अगर ये चीज पहले वाली हमेशा ही पॉजिटिव है तो इक्वेशन सिर्फ ये बच गई, और इसका मतलब क्लियरली दिस हैज टू बी पॉजिटिव और x हैज टू बी ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से इंफिनिटी, ये रिक्वायर्ड आंसर। How many of you have got the same answer? Write in the chat box yes. Okay, me is okay. चलो और बताइए. Let's see. Okay, Jatin also. Who else? Yes, Daman. You're asking or you're telling me? Hand raise से. X greater than -1 लिखा है. चलो that is okay. Though it is always highly recommended कि आप intervals का use दिखाएं, but यहां तक भी है तो that is okay. No problem. मतलब बाकियों ने किया क्या है, अगर 3 4 5 ही आंसर आए हैं मेरे पास, 6 स्टूडेंट्स। ओके चलिए ठीक है पीयूष। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बार बार बताया था कि इम्फेसिस आपका जाने वाला है असाइनमेंट के तरह के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा उन पे चेन रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, सो ये डेरिवेटिव निकालना है। सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, अप्लाई कोशेंट रूल, इसका स्क्वायर, नीचे वाले जिसे हम फर्स्ट कहते हैं बेसिकली, फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। आप पूरा स्टेप पे लिख दो तो इट इज ऑलवेज बेटर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। माइनस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो बस अब इस फॉर्मूला में अगर ढंग से लिख दिया उसके बाद तो इसका रूट ए याद रखो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये हो गया रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, और यहां आ गया -1/2√x। बस आप ये 2√x नीचे आ जाएगा और यहां बचेगा रूट ए माइनस रूट एक्स, माइनस रूट ए माइनस रूट एक्स ओवर 2√x इंटू रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। आई कैन इजीली ऑब्जर्व ये कैंसल, माइनस 2√x बचेगा, और 2 से चलो -2√x बचा ओवर दिस, और 2√x cancelled out. No need to open the square. Your required answer. स्क्वायर ओपन कर दिया लास्ट में, दैट इज ओके, बट यहां आप आंसर बिल्कुल इतना ही छोड़ रहे हैं। You can always start Nikunj with this rationalizing the denominator also,
बट इज दैट इज गोइंग टू बी एन इजियर सॉल्यूशन, वो एक सोचने वाली बात है. अगर उससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो, देन ऑफ कोर्स आई विल रिकमेंड एंड गो फॉर द सेम. बट मुझे यहाँ उसका बेनिफिट दिख नहीं रहा है, बिकॉज मैंने रैशनलाइजिंग के 2-3 स्टेप्स को माइंड में ले आया था स्टार्टिंग में ही. सो आई कुडंट सी कि वो कहीं हेल्पफुल रहने वाला है. इसी रीजन से आई फॉलोड द डायरेक्ट. यस ऑफ कोर्स. हाँ, तो अब वही चीज आ गई ना, आंसर भी वेरी करेगा एंड लॉन्गर मेथड जाएगा. दैट इज द थिंग. तो इसीलिए वो उस चीज को हमें थोड़ा ध्यान से समझना और देखना है कि आंसर अगर लॉन्गर हो रहा है, और वही है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करे हुए हैं तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि व्हाट मेथड शुड आई बिगिन विद, किस मेथड से कैलकुलेशन कम होने वाली है. इसीलिए आई प्रेफर टू गो विद द डायरेक्ट क्वेश्चन रूल हेयर. बट कोई दिक्कत नहीं, अगर रैशनलाइज से करा है तो वो भी चेक तो करते ही है, नो प्रॉब्लम इन दैट. अगर कैलकुलेशन ठीक है तभी मार्क्स पूरे हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन. तो ये तो वैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहा था. When I look at the problem, very first thing I need to go with the factorization. तो उस केस में मेक यूज ऑफ द फैक्टर थ्योरम, जो आपने क्लास 9th में किया हुआ है, हिट एंड ट्रायल. तो क्लियरली अगर आप नोट करें, व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 1, इस 6 के फैक्टर्स को देखते हैं ना, कांस्टेंट 6 के फैक्टर्स हैं +-1, +-2, +-3, +-6. तो एक बार 1 रखो, -1, 2, -2 एंड सो ऑन. तो मैंने चेक करा, जब मैंने x को 1 पुट करा तो क्या आ जाएगा, ये x की जगह सिर्फ आप 1 रख रहे हैं. So 1 minus 6 plus 11 minus 6. So one can easily observe it is 0. x equal to 1 के ऊपर आंसर 0 का मतलब क्या हो गया, x minus 1 is one of its factor. तो बस अगर एक फैक्टर मेरा डिसाइड हो गया x minus 1, आप x minus 1 से इस पूरे कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, डेफिनेटली रिमाइंडर विल बी 0. यहां क्वोशंट आएगा, और उसे आप जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यू कैन इजीली क्रॉस चेक, वो ये रहा होगा. और फिर आपने मेथड सीखा हुआ है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स. आपने इसे 0 के इक्वल कर दिया, इन तीनों को 0, और I have the value of x as 1, 2, 3. Then comes the method of wavy curve, minus infinity plus infinity. और फिर हम इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, 1, 2 एंड 3. और फिर राइट साइड से हम एज्यूम करते हैं वेवी कर्व लाइक दिस, दिस एंड दिस, सो दैट राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली प्लेस कर देते हैं. वी एग्जैक्टली वांटेड लेस देन 0. लेस देन 0 माने नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब जहां जहां नेगेटिव साइन लगा है, पिक दैट इंटरवल, and this is your required answer. So चेक करिए, यही आपका आंसर आया था. Any doubt to anyone?
सर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट दोबारा बता दो। This derivative यस सर, क्वेश्चन एक बार रूल, बता दो। आपको क्वेश्चन रूल लगाना आना चाहिए। अगर वो याद है तब तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन रूल, वो क्या होता है? तो उसमें हमने क्या सीखा हुआ है कि अगर मेरे पास मुझे डेरिवेटिव निकालना है u बाय v का, तो नीचे वाले को फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, ऊपर वाले को सेकंड। तो रूल गोज लाइक दिस, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, देन फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये तो ऑब्वियसली मेरा बेस रहा है, बेसिक फार्मूला। अब इसी को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। किस तरह से? अगर ये मेरा क्वेश्चन है y, तो बस मैंने क्वेश्चन रूल लगाया। ये नीचे वाला मेरा एक्चुअल में v हो गया, v माने फर्स्ट फंक्शन, और ऊपर वाला जो लिखा है रूट ए प्लस रूट एक्स, वो u है, मतलब सेकंड फंक्शन। और अब बस आरएचएस में जो मैंने फार्मूला लिखा है यहां पर, इसे बस नोट करते रहो, और इसके अकॉर्डिंगली व्हेन आई सब्स्टिट्यूट, ऊपर क्या लिखा है, v माने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d बाय dx, किसका, सेकंड फंक्शन। फिर माइनस आता है, फिक्स है। फिर आता है u, u का मतलब न्यूमरेटर हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, v माने नीचे वाला हो गया, और नीचे क्या आना होता है, v का होल स्क्वायर, सिंपली रूट ए माइनस रूट एक्स, और इसका होल स्क्वायर। इज दिस स्टेप इज क्लियर? यस सर। ये स्टेप, बस इसके बाद अब आ गई बात डेरिवेटिव को करने की। तो अगर मैं न्यूमरेटर में ध्यान से देखूं, तो रूट ए माइनस रूट एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव करना है। रूट ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और फिर रूट एक्स आ गया, 1/2 रूट एक्स। ये याद होना चाहिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड हमने याद करा हुआ है 1/2 रूट एक्स। फिर ये एज इट इज, और सिमिलरली ये -1/2 रूट एक्स दे देगा, ये एज इट इज। व्हेन यू टेक द एलसीएम इन द न्यूमरेटर, 2 रूट एक्स आएगा दोनों में, और ऑफ कोर्स वो आइडिया लग जाना चाहिए, वो 2 रूट एक्स यहां इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये तो कैसे हम फ्रैक्शंस के अंदर एलसीएम लेकर करते हैं वो चीज किया। ऊपर क्या बच गया, रूट ए माइनस रूट एक्स, बीच में माइनस था, तो माइनस की वजह से इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। रूट ए से रूट ए कैंसल, माइनस सर एक और माइनस था, कहां पर, -1/2 √x। ओ ओके ओके, यस यस, गॉट इट गॉट इट, ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट। इसका मतलब साइन थोड़ा सा फिर गलत हो गया था, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका था, तो प्लस रूट ए एंड प्लस रूट एक्स। सो रूट एक्स वाली टर्म एक्चुअल में कैंसल हो रही है, तो फिर 2 रूट ए आएगा, 2 से 2 कैंसल, तो रूट ए अपॉन रूट एक्स इंटू ये बचेगा। यस, वो ऊपर वाला जो था उस आंसर में गलती रही थी। सो एवरीवन, वो शायद इसीलिए आपने पॉइंट आउट करा होगा
यहाँ पर जो मैच नहीं करेगा ना हमारा आंसर, वो ये जो मैच नहीं करा, वो गलती यहाँ पर हो गई थी इसके साइन को देखने में. सो दिस स्टेप वाज रॉन्ग. तो अकॉर्डिंगली प्लीज चेक दिस आउट. दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन. तो ये गलत था. I hope this is clear. So Yes, sir. in the next class, we are going to start with the concept of conic section, right? So conic section में before you leave, एक YouTube वीडियो का लिंक है. I am sharing in the chat box. I expect कि आप कम से कम इसको जरूर देख रहे हैं. I think about 7-8 minute का है ये जो भी. So that you can always check out. And do confirm, is My it job audible? is to make college easier. Sorry, code. Conic sections. Is it audible? ये कॉनिक सेक्शन का जो वीडियो चलाया है, कैन यू ऑल? यस. अच्छा, आपको हो, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करा आपके साथ. I need to go with the different presentation. So quickly बस check करिए. 1 minute more. Is it now visible? Can anyone confirm? Yes, sir. So, and audible? And the line that remains fixed is Yes, sir. called the Okay. axis. So this is The a right circular cone 5-6 has a minutes circular video. base. So please watch this video. और ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक को तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा इस कंसेप्ट को डायरेक्टली हमारे लिए समझना. So please mark your attendance in the chat box. Thank you, sir. Have a good day, sir. Yeah, thank you. Good day. Chale, yes, now you can leave the class.